Good morning, student. In this video lecture, we will start one new section in social study, and that is the economics. Now the question is that what is economics? It's totally new for you because from class 9th we start the economics. This is a part of social science. Let us see what it is. Economics in Hindi we call it Arthashastra. The meaning of Arthashastra, Arth plus Shastra, it has been derived from two words, Arth and Shastra. Arth means money, Shastra means knowledge, Gyan. Means knowledge of money is called Arthashastra. So in economics, we will study about money. Money, like this is the basic need of each and every one. Because money is the medium of exchange of the things. मनी से हम किसी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी दे करके कोई चीज खरीद सकते हैं. तो मनी एक ऐसा मैटर है जिसकी पूरी व्यवस्था चल रही है. आप अभी अपनी पढ़ाई इसी कारण कर पा रहे होंगे क्योंकि आप फीस दे रहे हैं. अगर आप फीस नहीं देते शायद हो सकता है आपको ग्रुप से निकाल दिया जाए आपका, या फिर स्कूल से नाम काट दिया जाए, या कोई भी चीज आपको मार्केट से परचेज करनी हो तो आप मनी देते हैं, उसके बाद आपको प्राप्त होती है. तो हम इस सेक्शन में इकोनॉमिक्स की बुक में हम लोग मनी से रिलेटेड मैटर को स्टडी करेंगे. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट द मनी? दोज हु आर इंटरेस्टेड, बी केयरफुल अबाउट this section of SST, that is the economic. It tell you what are the basic way, what are the basic process through which we can earn the money. Actually, this economic section, this is related to commerce section. In class 11, most of you will take the commerce section. In that commerce, there is a separate subject that is the economics. There is a separate subject that is a account. There is a separate subject that is the BST, business study. तो ये उसकी एक ब्रांच, इकोनॉमिक, अकाउंट, BST की एक ब्रांच, दैट इज द इकोनॉमिक्स. ये हम क्लास 11 से न पढ़ करके इसका अध्ययन हम क्लास 9 से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें इतनी जरूरी है कि आपको ये पता होना ही चाहिए. लेट अस स्टार्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 9. बिफोर स्टार्टिंग द थिंग्स, let us see the introduction of the economic activities. What is economic activities? और कौन-कौन से कार्य होते हैं जो हम आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं, जो हम पैसे के लिए, जो हम अपनी जीविका को चलाने के लिए करते हैं. तो there are so many activities, means वो सारी एक्टिविटीज जिसको करने के बाद हमें पैसे मिलते हैं. Now the question is that what is this economic activity and non-economic activity? Suppose करिए बेटा कि मैं I am teaching you in the online classes. This is the economic activity because for that you are paying in the form of fee and I am getting the salary. Suppose I am teaching to my son at my home. Did my son will give the money? No. In that situation, my teaching at the home to my son is non-economic activity, and my teaching in the classroom in front of a student is the economic activity. So the work may be economic and uneconomic. It's depend upon the situation.
कि आप कहां पर क्या कार्य कर रहे हैं। अगर आपकी माता जी आपके लिए भोजन बना रही है, घर में बना रही है, तो वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या पुरुष किसी होटल में भोजन बना रहा है, वह इकोनॉमिक एक्टिविटी। हियर वी विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। We can divide economic activity into 3 sections, that is the primary, secondary and tertiary. Primary sector, secondary sector and tertiary sector. In primary sector, we exploit the natural resources. Natural resources को exploit करके, land, air, water को exploit करके जो हम economic activity प्राप्त करते हैं, उसको primary sector करते हैं। जैसे फार्मिंग करना, फिशिंग करना, डेयरी करना, ये जितनी एक्टिविटीज हैं, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज है। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज भी इसे करते हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट नेचर को एक्सप्लॉइट करके, नेचर से लिंक करके और हम वो प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। चाहे वो कोई हम प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे किसी चीज की फार्मिंग कर रहे हैं, या कैटल्स को रेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं, जो मोस्टली विलेजेस में ये सारे कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज को, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग किया जाता है और फाइनल गुड्स में बदल दिया जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल। व्हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, और जब उस व्हीट से हम ब्रेड बना देते हैं, वह सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। इन सेकेंडरी सेक्टर देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहां पे हम गुड्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। सपोज दिस इज ए मार्कर। ये मार्कर किसी चीज से बना है, प्लास्टिक से बना है, या किसी नेचुरल सोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके बना है। दिस इज द पोडियम एंड दिस इज मेड अप ऑफ द वुड, फर्नीचर्स एंड लाइक दैट। सो ये क्या है, इनको एक्सप्लॉइट करके ये बना है। जैसे ये आयरन से बना है। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर को प्रोसेसिंग के द्वारा उसको एक गुड्स में बदल दिया जाता है। दैट इज द सेकेंडरी। मींस देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज जनरली डन इन द इंडस्ट्री, सो दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो। And in tertiary sector, we provide the service. Like I am providing you the service. I am providing service. I am importing knowledge from one portion to another portion. Suppose there is a transportation facility that is providing the services. The cobbler, the doctor, the engineer, the shopkeeper, all these are providing the services. So that is the service. So all the economic activities can broadly be categorized into 3 sectors, that is the primary, secondary and tertiary. In the first chapter of the economics, that is the story of village Palampur, we will study about the secondary sector, that is the production of the goods. We will see what is the production and what are the factors related to production. हम इसमें देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है और उस प्रोडक्शन को करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। That is called the factors of production. So in the first chapter of economics, that is the story of village Palampur, we will see the factor of production. We will know the factor by study one story. स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको प्रोडक्शन की बारीकियों को समझाने का प्रयास किया गया।
इस चैप्टर में एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर का नाम दिया गया है और उसके माध्यम से प्रोडक्शन के क्या क्या तत्व होते हैं इनको बताने का प्रयास किया गया। लेट अस सी वन बाय वन। देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज द ह्यूमन कैपिटल। लैंड, दिस इज an area where production is done। किसी चीज की बात कर ले, कोई चीज प्रोडक्शन करना है, हमको ये मार्केट रिप्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए हमको एक फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, एक इंडस्ट्री डालनी पड़ेगी या वो जगह जहां पे ये प्रोड्यूस किया जाएगा। सो दैट इज द लैंड। नेक्स्ट इज द लेबर, जो श्रमिक जो कार्य करेंगे, जो वास्तव में इसको पैदा करने के लिए प्रयास करेगा, जो या तो मशीन के ऊपर काम करेगा या वो डिफरेंट चीज को कार्य करेगा। लेबर को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। वन इज द स्किल्ड लेबर, अनदर इज द अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जो टेक्निकल नॉलेज लिया हुआ हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। अनस्किल्ड लेबर जो टेक्निकल नॉलेज न लिया हो, जिसको कि जो हम कहें वो करें, जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाए उतना ही करें। दैट इज द अनस्किल्ड लेबर। नेक्स्ट इज द फिजिकल कैपिटल। जनरली वी कॉल इट एज ए कैपिटल। कैपिटल मींस पूंजी। किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ फिक्स्ड कैपिटल और कुछ वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मींस ऐसी पूंजी जो उस फैक्ट्री को बनाने के लिए लगा हुआ। एक तो आपने लैंड ले लिया, लैंड मींस खाली लैंड, और इसके ऊपर हम लोग जो कैपिटल लगाएंगे, ये क्या करेंगे, इसके ऊपर इंडस्ट्री डालेंगे, कुछ मशीन लेंगे, कुछ और भी इक्विपमेंट लेंगे। इसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल करते हैं। मीन्स वो पैसा जो इंडस्ट्री को बनाने में, जो मशीन को लेने में, जो ट्रैक्टर लेने में, थ्रेशर लेने में, कुछ इस तरह के औजार लेने में जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल जो किसी भी चीज को चलाने के लिए कोई चीज कैश का लेन देन करना होता है, जो कोई चीज हमें मैनेज करना है, किसी को सैलरी देनी है, ये क्या है, ये हमारा वर्किंग कैपिटल। तो वो कैपिटल जो भी हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं या सैलरी के रूप में देते हैं, दैट इज द वर्किंग कैपिटल। तो कुछ फिक्स पूंजी होती है और कुछ ऐसी होती है जो मूवमेंट करती रहती है, फ्लोटेड करती रहती है। दैट इज अ वर्किंग कैपिटल। एंड द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या करता है कि ये तीनों को मैनेज करके वर्क करता है। सो इट इज ए मैनेजमेंट सिस्टम जो लैंड के ऊपर फिक्स्ड कैपिटल को लगाता है, वर्किंग कैपिटल के सहारे स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों से काम लेते हुए प्रोडक्शन को पैदा करता है। दिस इज द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट बॉडी है जो ये सारा कुछ प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। So this is the introduction section of chapter 1st of economics, that is the story of village Palampur. In this chapter we will see all these factors one by one. That's all for today.